लेडर टूर्नामेंट के लाभ। Advantage of ladder tournament. Competition ladder require every little hands-on involvement and basically run themselves, unlike tournaments where administrator face match scheduling, head chases, tournaments expense and must be on site for the duration of the event. Later participants contact each other, decide on a day, time and place to play their match and report the score. लेडर टूर्नामेंट के लाभ। प्रतियोगिता की सीढ़ियों के लिए बहुत थोड़ी व्यवहारिक सहभागिता आवश्यक होती है और ये मूलत खुद व खुद चलते हैं। ऐसे टूर्नामेंट जहां व्यवस्थापकों को मैच के शेड्यूल की चिंता होती है के विपरीत लेडर प्रतिभागी एक दूसरे से संपर्क करते हैं, अपने मैच खेलने के लिए दिन समय स्थान तय करते हैं, अंक की रिपोर्ट करते हैं। लेडर टूर्नामेंट में क्या होता है, जो भी प्रतिभागी है वो एक दूसरे से संपर्क स्वयं करते हैं और वो समय स्थान स्वयं निश्चित करते हैं। पिरामिड टूर्नामेंट। Pyramid tournament. This type of challenge tournament of recommended for a large number of individual player may challenge and any player horizontally. Winners may challenge opponents in the row above. A variation may be used in which winner of a challenge are placed in the bottom row. Bottom row winners move to the second row if a vacancy exists. They continue in this manner to move up until a winner is determined. पिरामिड स्पर्धा। इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धा का सुझाव वहां दिया जाता है जहां खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा हो। खिलाड़ी अक्षैतिज रूप से किसी भी खिलाड़ी को चुनौती दे सकता है। विजेता ऊपरी पंक्ति में विरोधियों को चुनौती दे सकते हैं एवं विभिन्नता का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें एक चुनौती के विजेता को निचली पंक्ति में रखा जाता है। निचली पंक्ति के विजेता दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं। अगर कोई खाली स्थान होता है वे इसी प्रकार ऊपर की ओर चलते रहते हैं जब तक कि विजेता का निर्णय न हो। पिरामिड टूर्नामेंट में नीचे वाला ऊपर को चैलेंज करता है, जो ऊपर पंक्ति में होता है उसको चैलेंज करता है और अगर वो उस पंक्ति में भी उस में भी जीत जाता है तो वो नेक्स्ट पंक्ति में पार्टिसिपेशन करता है या नेक्स्ट प्लेयर्स को चैलेंज कर सकता है। कॉबवेब टूर्नामेंट। मकड़ी के जाल के रूप में प्रतिस्पर्धा। द कॉबवेब ऑफ स्पाइडर वेब spider web tournament take its name from the brackets design which is the shape of the spider web. The championship position is at the center of the web. The bracket consists of 5 lines drawn radically from the center and the positions name are placed on concentric lines crossing their radial lines. Challenge may be made by person on a concentric line to any person on the next line closer to the center. The tournament provides more opportunity for activity. Organization adopt should be the one best for the group activity and local interested. The goal should be the have a much participation as a possible for the facility and time available. कॉबवेब प्रतिस्पर्धा। मकड़ी के जाल की तरह
प्रतिस्पर्धा का नाम इसके कोष्ठक डिजाइन के कारण पड़ा है, जो कि एक मकड़ी के जाल की बनावट होती है। चैंपियनशिप की जगह चैंपियनशिप की जगह की स्थिति जाले के बीच में होती है। एक कोष्ठक में 5 पंक्तियां होती है जो केंद्र से बाहर की ओर खींची होती है। केंद्रित लाइनें जो रेडियल लाइन को काटती है पर खिलाड़ियों के नाम लिखे होते हैं। केंद्रित लाइनों पर किसी भी खिलाड़ी द्वारा केंद्र की ओर अपने से अगली लाइन पर स्थिति खिलाड़ी को चुनौती दी जा सकती है। यह प्रतिस्पर्धा गति करने के अधिक अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार की स्पर्धाएं सामूहिक गतिविधियों और स्थानीय रुचियों के लिए उत्तम होती है। इसका लक्ष्य सुविधाओं और उपलब्ध समय के लिए अधिक से अधिक भागीदारी होना है। Project the draft note by and shading and league staircase and cyclic method. Fixture are the schedule fixed for the matches to be played, their time, place, court or ground, number and date. It is a detailed program made by the organizer before few days or on the same day of the competition. This is to inform the team about in the time, place and date of the match to be played by their team. There are many type of fixtures that are fixed according to time, ground, equipment, official facility and team participation act. खेले जाने वाली खेलों का नियम, कार्यक्रम, उसका स्थान, कोर्ट या मैदान, संख्या, तिथि आदि का नियत कार्यक्रम फिक्चर कहलाते हैं। यह प्रबंधों द्वारा कुछ दिन पूर्व प्रतियोगिता वाले दिन बनाया गया विस्तृत स्थान और बहुत पर होते हैं। अधिकारियों सुविधा भाग ले रही टीमों आदि के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है। Buy is the advantage given to the team, usually by drawing a lot, accepting the team from playing a match in the round. Buy are given to specific number of teams first round so that in the subsequent rounds of number of teams can be brought to the power to. In other case, buys are given to the team when they have to be seeded. प्राय पर्चे निकाल कर जो लाभ किसी टीम को दिया जाता है द्वारा उसे अगले राउंड में मैच से कर दिया जाए, उसे बाई कहा जाता है। जिस भी को बाई मिलती है वो नेक्स्ट राउंड में ही खेलती है। उस राउंड में उसे मुक्त कर दिया जाता है और उसे अगले राउंड में पहुंचा दिया जाता है बिना खेले। बाई कुछ विशेष टीमों को पहले राउंड में दी जाती है ताकि राउंड में भाग ले रही टीमों की संख्या को शक्ति के अधीन लाया जा सके। दूसरे मामलों में बाई टीमों को तब दी जाती है जब उनकी सीडिंग करनी हो। The number of buys are decided by subtracting the number of teams from the next higher number, which is in power of 2. For example, if अगर हमारे पास 12 टीम है for a tournament, the next higher number above 12, which is 16 to give 4. So the night to be given are 16 minus 12 is equal to 4. बाई दी जाने वाली संख्याओं का फैसला
ले उच्च अंक उच्च अंक को की वो शक्ति पावर होता है में से टीमों की संख्या को घटाकर किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग ले रही है तो दूसरा अंक अगला अंक जो कि 12 से उच्च तथा 2 की घात पावर होगा वह होगा 16 इसलिए 22 दी जाने वाली संख्या होगी 16 माइनस 12। टोटल जो टीम है हमारी उसको माइनस कर देंगे और बाई आएगी हमारी 4। अगर टीम हमारे पास है 17 18 20 21 27 कितनी भी हो सकती है तो 2 की पावर देखते हैं। पहले 16 है फिर क्या देखेंगे हम 32 32 में से माइनस करेंगे। अगर 16 से ऊपर 17 18 20 19 कुछ भी हो तो उसमें से हम 32 से माइनस की जाएगी जिससे कि वो बाई निकाली जा सके। बाई निकालते 2 की पावर 2 की पावर देखते हैं। अगर टीम हमारे पास है 5 तो 2 की पावर 2 4 8 8 माइनस 6 तो बाई कितनी आएगी 2। Procedure to draw fixture is in knockout tournament. Following rule should be kept in mind while drawing fixture. The for knockout tournament. Total number of team participation in the tournament. Total number of match of be played in the tournament. कितने टीम खेल रही है कितने participations है। Formula for calculating number of matches n minus 1 टोटल नंबर ऑफ मैचेस टोटल मैच कितनी टीम है और उसके कितने मैच होने टोटल उस प्रतियोगिता में कितनी टीम है और उसके मैच कितने नंबर n माइनस 1 जितनी भी टीम है उसमें से 1 एक घटा देंगे तो वो टोटल मैच होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 11 टीम है तो 11 माइनस 1 तो 10 मैच होंगे। अगर 13 है 13 माइनस 1 जितने भी टीम है उसमें से माइनस 1 कर दे तो वो टोटल मैच हमारे होंगे। एग्जाम्पल इफ 11 टीम आर प्लेइंग इन द टूर्नामेंट द नंबर ऑफ राउंड विल बी 4 as the higher nearest number of 11 in power of 2 is 4 if team 20 teams are playing in a tournament number of round will be 5। अगर 4 टीम है 16 टीम है तो 4 राउंड होंगे। अगर 16 से ऊपर हो टीम है हमारे पास तो 5 राउंड होंगे। अगर 16 से नीचे हैं तो 3 राउंड होंगे। मेथड ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ लोअर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीम होंगी और लोअर हाफ में कितनी टीम। इफ द नंबर ऑफ टीम इज even then equal number of teams will be divided in the both halves n बटे 2 where n is the total number of team बटे 2। ऊपरी और निचले हाफ में 22 की संख्या निर्धारित की विधि। यदि टीमों की संख्या सम है तब प्रत्येक हाफ यानी कि ऊपरी और निचले में 22 की संख्या एन बी माइनस एन बी बटे 2 जहां पर एन बी 22 की संख्या है।
If number of odd team, then following procedure is applied. Number of team in upper half n plus 1/2, wherein n is equal to number of team. Number of team है जैसे 11 और odd है या कुछ भी है n plus 1 11 है, 11 plus 1/2 तो ऊपर अपर में क्या आएगा 12, तो 16 अपर हाफ में आएंगे आपकी। अगर लोअर हाफ n माइनस n-1/2, तो इसमें 11 माइनस 1/2 10 to 5 लोअर हाफ में हमारी टीम 5 आएंगी। हमेशा बच्चों याद रखना है कि अपर हाफ में हमारी एक टीम निचले हाफ से एक टीम ज्यादा होती है अगर ओड है, और बाई इसके विपरीत है। विपरीत अगर बाई हमारी 6 है या 7 है तो 4 बाई तो 3 बाई ऊपरी और निचले हाफ में 22 की संख्या निर्धारित करने के लिए बाईस की संख्या निर्धारित करने के लिए अगर 1 इज इक्वल टू 2, अपर हाफ की 22 और लोअर हाफ में है NB माइनस NB प्लस 1 इन पॉइंट 2, तो आप अपर हाफ में 22 हमेशा कम आएंगी और लोअर हाफ में 22 हमेशा ज्यादा आएंगी। इसलिए NB क्या है नंबर ऑफ 22, NB है नंबर ऑफ 22, नंबर ऑफ 22 NB 1 अपर हाफ मेथड अपॉइंट टू 2, तो NB 11 है, बाई हमारी है 7 प्लस -1/2, तो अपर हाफ में आएंगे हमारी 3/22 और लोअर हाफ में आएंगे हमारी 4/22। बाई क्या होती है, बाई का आपको पता लग गया होगा कि फर्स्ट राउंड में जिस भी टीम को बाई मिलती है उसे नेक्स्ट राउंड में विदाउट नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाता है, उसे ये एडवांटेज मिल दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो लास्ट की बेस्ट टीम या जो विनर टीम है और रनर अप टीम है उनको अलग अलग हाफ में डाल दिया जाता है, जिससे कि टूर्नामेंट को एक रोमांचक बना सके। अगर अच्छी टीम है किसी भी खेल की हो, अच्छी टीम अगर पहले राउंड में ही बाहर हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट, दर्शकों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो उसमें खेल में दर्शकों की संख्या कम हो जाती है, जिससे कि अच्छी टीम हो जाते हैं या अच्छे मैच नहीं लगेंगे तो दर्शक उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। नंबर ऑफ टीम 11, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ इन पावर ऑफ 2 16, फिर 32, संख्या 22 को कैसे दिया जाता है? How does I in even number of teams? The first is given to the last of the lower half. जो हमारी टीम होती है सबसे पहली बाई
वहां दी जाती है। 3 बाई द सेकंड बाई फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। जो हाफ बनाए हुए हैं देखो, अपर हाफ, लोअर हाफ, इनमें सबसे पहली बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम और सेकंड बाई, दूसरी बाई अपर हाफ की पहली टीम को दी जाती है। द थर्ड बाई इज गिवन फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। जो हमारे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है, जैसे 7 है तो इसको थर्ड बाई दी जाएगी। द फोर्थ बाई इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। जो अपर हाफ की लास्ट टीम है 6, उसको फोर्थ बाई दी जाएगी। इसका एक मेथड और है 4-1 4-1-3-2 4-1-2। जैसे 4 किसको मानते हैं हम, जैसे 12 है हमारी इसमें पिक्चर में, 1 जो 1 है अपर आपके फर्स्ट टीम है, 3 को मानते हैं हम 7 जो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है 7 और 2 जो अपर हाफ की लास्ट टीम है 6। हम जब भी बाई, चाहे बाई हमारे पास 16 हो, 17 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी बाई हमारे टीम में होगी या जितनी बाई हमारे उसमें होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 4-1-3-2 ये नोट कर लो बच्चों, 4-1-3-2। पहले 4 किसको माना मैंने, लोअर हाफ की लास्ट टीम को, और 1 अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और 2 अपर हाफ की सेकंड 6 लास्ट टीम को। तो आप 1 6 टीम को 2, 7 टीम को 3 और 12 टीम को 4, इसके अकॉर्डिंग बाई देंगे हम। सबसे पहले हमारी बाई आई है, ये देखिए फर्स्ट राउंड, और राउंड कितने होंगे हमारी, 12 टीम है तो राउंड होंगे 4, अगर 16 से ज्यादा है राउंड होंगे 5, अगर 8 से कम है राउंड होंगे 3। ये ध्यान रखना आपने, राउंड देखना आपने, 2 की पावर को देखना कहाँ तक मैच करती है 2 की पावर, तो आपको पता लग जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना, 16 आ जाएगा आपका। तो 4 राउंड होंगे, अगर इससे ज्यादा है 17, 18, 19, 20 जितनी भी टीम होंगी तो 5 राउंड होंगे 32 तक। अगर 32 से ज्यादा टीम है, 32 से ज्यादा टीम है तो आपके 6 राउंड होंगे, तो 6 राउंड होंगे। आपको देख पिक्चर में दिखाया गया है, फर्स्ट राउंड में पहले बाई दी है, अगर हमारे पास टीम कितनी है 12, तो 6 6 अपर हाफ में और 6 ही लोअर हाफ में, ठीक है ना। इसमें क्या है, बाई दी है 2 अपर हाफ में 2 लोअर हाफ में। सबसे पहले बाई आएगी हमारी 12 पे, फिर 1 पे, 6 पे, फिर 4। ऐसे हमारे फिक्चर तैयार होंगे, और इनका फर्स्ट राउंड में और सी और ई का, और आई का, जे और के का फर्स्ट राउंड में। ये जो जिन टीम नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे विदाउट प्ले, बिना खेले ही, और सेकंड राउंड में चले जाएंगे। अब बी और सी में से जो भी जीतता है विनर होता है, उसका ए के साथ मैच होगा। डी और ई में से जो भी जीतता है जैसे विनर हुआ है तो एफ के साथ होगा, और ऐसे ही लोअर हाफ में एच और आई के साथ जो जीत, और ए में से जो जीतता है एल के साथ मैच होगा। और ये जैसे थर्ड राउंड में अपर हाफ में ए विनर होता है इधर से होता है डी, तो डी और ए का मैच होगा, वो जैसे है, और इधर लोअर में डी और
22 में से आई जीतता है तो और मैच होगा, और फिर उसके बाद डी और उसके बाद विनर, फोर्थ राउंड में विनर निकाल दिए जाएंगे। जो विनर होगा उसके बाद वो विनर होगा। हाउ टू प्लेस बाय इन ओड नंबर ऑफ टीम। विषय है टीमों में 22 को कैसे रखा जाता है। If there are 11 teams taking part in the tournament are given in the following ways. Number of competing teams is 11. Number above 11 which is power 2. यदि खेल प्रतियोगिता में टीम भाग ले रही है तो 22 को निम्नलिखित प्रकार से दिया जाता है। नंबर ऑफ 22 16, 2 की पावर बड़ी कौन है 16, तो 2 की पावर 16 आ जाएगा, 16 माइनस 11 तो 22 आएगी हमारी 5। 22 को कैसे बांटा जाता है, एन की टीमों की संख्या और एन की